Hello everyone, today we'll be talking about PID controllers. Before moving to our main topic, let us discuss few concepts of control system. A control system is a set of devices or algorithms that manage, command, or directs the behavior of other devices or systems to achieve a desired result. Feedback in control system is a crucial concept that involves using the output of a system to adjust its input. Control systems are used to control the performance of machine, processes, or systems by automatically adjusting its variables based on feedback. Control systems are designed to maintain the output of a system within the desired range by making adjustments based on the difference between the desired and the actual output. From the video, we can clearly see that the player is trying to correct its position by changing the direction of the ailerons. This is achieved with the help of PID controller. So a PID controller is a type of feedback control system widely used in industrial control systems, robotics, and various other engineering applications. The PID stands for Proportional Integral Derivative, which refers to the three terms that are used to calculate the output signal to adjust a system. The proportional term produces an output that is directly proportional to the error. The error value, which is the difference between the desired set point and the current value of the process variable. The integral term accounts for accumulated past errors. Over the time, if the error persists, the integral term increases correct its cumulative error. Here, the derivative term predicts the future error based on the rate of change of the error. It works to reduce the system's tendency to overshoot by applying a corrective action proportional to the rate of change of its error. Let's take a real example of PID. Say we want to adjust the temperature of an oven at exactly 180 degrees Celsius. So the proportional term measures the current error, that is the difference between the desired set point and the actual value. The larger the error, the stronger will be the corrective action. Say if we are 10 degrees below the desired temperature, the system works harder to close the gap. The integral term, it measures the accumulation of past errors over the time. If the system has been off target for a while, it will apply more correction to eliminate the error. Sorry. Derivative term, it measures the rate of change of the error. If the error is changing rapidly, the system will act faster to prevent overshooting. Let's take another example of car with a cruise control system. So the proportional term here will adjust the throttle based on the speed error. The integral part accumulates the speed error if the car has been going too slow for a while, and the derivative part reacts how fast the car speed is changing to prevent overshooting the target speed. Everyone, myself Aniket Anand, member of Fine Robotics Club NR। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया PID कंट्रोलर, इसमें P टर्म, I टर्म और D टर्म के बारे में देख लिया। उसके फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, ये वाला देखा कि कैसे PID की मदद से हम लोग इसको बैलेंस कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि PID की मदद से कैसे हम लोग चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, वो देखेंगे पहले। उसके बाद फिर एक ड्रोन वाला एग्जांपल देखेंगे। ड्रोन नाम सुनते ही सबकी आंखों में चमक आ गया, वाह। उसके बाद फिर हम लोग हमने जो क्लब में खुद बनाया था बॉट, उसकी PID ट्यून करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमने ओपन सिस्टम से क्लोज सिस्टम की ओर क्यों गए। जो ओपन सिस्टम होता है हमारा, उसमें क्या होता है कि हमने एक इनपुट दिया और हमें क्या मिला, एक आउटपुट दिया, और हमें पता ही नहीं चल रहा है कि बात जो हमारी सराउंडिंग की चीज़ें हैं वो क्या हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सपोज अगर हमें 50 मीटर चलना है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज आवर टारगेट, हमें यहाँ से चल के यहाँ आना है। तो हमने इनपुट दे दिया कि चलो मशीन स्टार्ट हो गई मशीन, बट हमने क्या किया, एंड करने के लिए कोई बटन ही नहीं लगाया, कि हमने बताया ही नहीं कि कब एंड करना है। सो जो हमारा ओपन सिस्टम था वो नॉन रिलायबल था और नॉन एक्यूरेट था, जिसके चक्कर में हम ओपन से कहाँ गए, क्लोज की ओर गए। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि ओपन सिस्टम होता क्या है। ओपन सिस्टम क्या है हमारा, सिंपल सा, उसमें एक प्लांट होता है। प्लांट यानी कि सिस्टम जिसको हम लोग कंट्रोल करने वाले हैं।
ठीक है, वैसा सिस्टम जिसे हम लोग कंट्रोल करने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल बेसिकली हमारा आउटपुट होता है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टर्म्स होते हैं। और एक्चुएटिंग सिग्नल कहने का मतलब है इनपुट, और इसको बोलते हैं आउटपुट। ये हमारा बेसिक सिस्टम होता है। बट जब हम लोग क्लोज लूप की बात करते हैं, ये तो हमारा ओपन सिस्टम हो गया। क्लोज लूप में क्या करते हैं, एक आउटपुट रहता है हमारा, और आउटपुट को हम लोग रिटर्न कर देते हैं। अब क्या है कि हमारा एक टारगेट होता है, ठीक है, कि हमें कहीं जाके रुकना है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमारा इस पॉइंट पर रुकना था, ठीक है। तो हमने एनालाइज किया, ये हमारा फीडबैक वाला सिस्टम हो गया, ये फीडबैक, ठीक है। ये टारगेट बोल दे, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कमांड वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो हमने कंपेयर किया कि हमें 50 मीटर चलना था, हम कितना चले अभी, 0। तो इसमें और इसमें एरर कितना है, 50 माइनस 0। तो हमारा एरर टर्म क्या हो जाएगा, एरर क्या है बेसिकली, जो हमारा आउटपुट है यहाँ पे वो माइनस जो हमें चाहिए टारगेट, वो तो हो जाएगा 50 माइनस 0, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया। अब यहाँ पे कुछ होगा जो कुछ कुछ चीज़ें करेगा, जिसके बाद फिर क्या होगा, हमें एक आउटपुट मिलेगा और वो हम प्लांट को दे देंगे, ठीक है। तो हमारा जो क्लोज लूप सिस्टम होता है कुछ इस प्रकार का होता है। एक्चुएटिंग सिग्नल, प्लांट हमारा, कंट्रोल वेरिएबल, इसी को आउटपुट बोलते हैं, ये हमारा इनपुट हो जाएगा, ये फीडबैक पाथ, और इसी फीडबैक पाथ को हम लोग कमांड वेरिएबल या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टारगेट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा एरर टर्म आ जाएगा। अब इस एरर, हमारा टारगेट क्या है, इस एरर को 0 करने का। अब 0 कौन करेगा, ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोलर, जो क्या करेगा, एरर के साथ कुछ जादू करेगा और हमें ट्राई करेगा, ये कोशिश करेगा क्या कि हमारा 0 क्या हो जाए, एरर क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल सिस्टम हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारा कमांड वेरिएबल, ये हमारा एरर कंट्रोलर, एक्चुएटिंग सिग्नल या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इनपुट, ये हमारा प्लांट, ये कंट्रोल वेरिएबल, और यहीं से हमने क्या किया, आउटपुट से ही एक फीडबैक सिस्टम दे दिया। तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक क्लोज्ड लूप फीडबैक क्लोज सिस्टम, ठीक है, फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं, जिसे ट्राई करते हैं चीज़ों को समझने की। तो हमारे पास एक एग्जांपल क्या है कि एक लड़का है, यानी कि तुम ही हो, तुम्हें क्या करना है, यहाँ से मिडफील्ड की ओर जाना है। कहाँ जाना है, मिडफील्ड की ओर जाना है, और इस दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर है। तो हमारा एम क्या है, हाफ वे लाइन टू द फील्ड, ठीक है। उसी फिर हम लोग क्या करने वाले हैं कि स्टार्ट किया हमने, तो हमारा कमांडिंग वेरिएबल या फिर टारगेट क्या हो गया हमारा, कि 50 मीटर हमें चलना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। हमारा एक्चुएटिंग सिग्नल क्या हो जाएगा, वॉकिंग स्पीड, कि हम लोग कितना चलने वाले हैं। हमारा प्लांट क्या हो जाएगा, तुम खुद, यू। और हमारा कंट्रोल वेरिएबल क्या हो जाएगा, पोजीशन, फील्ड पे हमारी क्या पोजीशन है, करंट वाली, ठीक है। और हमने मान लिया कि हमने कंट्रोलर की वैल्यू को या फिर इसको 0.1 बोल दिया, कंट्रोलर बोलो या फिर इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, गेन बोल देते हैं, ठीक है। तो हमने प्लांट को क्या बोल दिया, तुम खुद हो, एक्चुएटिंग सिग्नल क्या हो गया, वॉकिंग स्पीड, कंट्रोल वेरिएबल क्या हो गया, करंट लोकेशन ऑन द फील्ड, कमांड वेरिएबल क्या होगा कि हमें 50 मीटर 50 मीटर चलना है टोटल। तो हमारा एरर कितना हो जाएगा, ये हमारा अभी अगर हम मान ले कि 0 है इनिशियली, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये है 50 माइनस 0, एरर कितना हो जाएगा हमारा, 50 माइनस 0, ठीक है, दैट इज 0। तो अब हम क्या करेंगे, वॉकिंग स्पीड निकालते हैं। हमारा वॉकिंग स्पीड क्या होगा,
जो हमने गेन लिया है वो हमारा जो करंट एरर है वो तो 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो इनिशियली हम लोग मान रहे हैं कि हम लोग 0 पे हैं, ठीक है। सिस्टम यहाँ पे गया, यहाँ से इसके पास गया, हमें पता क्या चला कि हमारा एरर 50 है। फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करके आया तो हमारा वॉकिंग स्पीड क्या आ गया 5 मीटर। अब हम प्लांट को क्या दे रहे हैं, प्लांट यानी कि तुम खुद हो, तो हम तुम्हारे ब्रेन ने तुमको क्या बोला कि चलना है, हमें 5 मीटर की स्पीड से चलना है। तुम और चले तो अब तुम्हारा लोकेशन क्या आ गया, 50 मीटर था और तुमने 5 मीटर चल लिया ऑलरेडी, तो अब तुम्हारा एरर कितना हो जाएगा 45, क्योंकि तुम्हारी लोकेशन 5 है और ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। फिर अब इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.1 इंटू 45 तो 4.5। फिर तुम और थोड़ा सा आगे चलोगे, आगे चलते 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 ले जाओगे, फिर एक पॉइंट आएगा जब तुम क्या करोगे, डिस्टेंस सारा कवर कर लोगे। तो हमारा अगर हम डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ देखें तो क्या हो जाएगा, इनिशियली हम लोग 0 पे थे और विथ टाइम हमने 50 मीटर कवर कर लिया। अब क्या है हमारे पास, वॉकिंग स्पीड और टाइम का ग्राफ अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, इनिशियली हम लोग फास्ट चल रहे होंगे, ब्रेन हमारा बोल रहा कि अरे हम तो बहुत दूर है, हमें आगे चलने की जरूरत है, तो फास्ट चल रहे और जैसे हम लोग पास पहुंच गए तो हमारा ब्रेन क्या बोलेगा कि अरे हम तो पहुंचने वाले हैं, स्लो स्लो चलो स्लो 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 स्लो। तो हम लोग क्या जाएंगे, इनिशियली जाके रुक जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग क्या करें, ये जो गेन है हमारा, अगर इसकी वैल्यू को बढ़ा दे तो अगर गेन बढ़ा देंगे तो हम लोग क्या हो पाएंगे, डिस्टेंस जल्दी कवर कर पाएंगे। अगर डिस्टेंस जल्दी कर पाएंगे तो हमारा जल्दी ये कवर हो जाएगा। अगर हमारे गेन की वैल्यू टाइम का देखें तो कुछ ऐसी बन जाएगी। अगर यही वैल्यू कम कर दी तो क्या हो जाएगा, और टाइम लगेगा हमें कवर करने में। तो यही चीज़ मैंने यहाँ बताई है कि जैसे जैसे हम लोग गेन की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो हमें कम टाइम लगेगा, और जैसे जैसे हम वैल्यू कम करेंगे तो हमें क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा 50 मीटर कवर करने में। सेम चीज़ यहीं पे भी है, वॉकिंग स्पीड इनिशियली हमारी हाई रहेगी, फिर एज इवेंचुअली इट विल स्लो डाउन, ठीक है। तो अब बोल रहे हो कि यार ठीक है, ये तो परफेक्टली काम कर रहा है हमारा सिस्टम, तो हमें और दूसरे सिस्टम की ज़रूरत क्यों है, तो हमें ज़रूरत क्यों है इसकी। तो अभी तो हमें लग रहा है कि सिर्फ एक ही टर्म से हो जाएगा हमारा काम, जो कि हमारा प्रोपोर्शन पी वाला टर्म हमारा है। ये पी वाले टर्म से हमें लगता है कि हमें हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि क्या पी से हमारा काम हो जाएगा या फिर नहीं। तो हमारे पास ड्रोन, सबकी आंखें और चमक गई, अब लग रहा है कि हाँ कुछ सीख रहे हैं। तो ड्रोन, तो हमारा काम क्या है कि इसे 50 मीटर की दूरी से, ज़मीन के हाइट से इसे हावर करवाना है यहाँ पे ड्रोन को। तो ये क्या करता है, ड्रोन्स में पंखे लगे होते हैं, उसको हम लोग प्रोपेलर बोलते हैं। तो प्रोपेलर एक फोर्स लगाएगा जिसके कारण क्या होगा, पूरा ये ऊपर चला जाएगा सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हमारी सिस्टम क्या हो जाएगा, जो हमारा प्लांट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक ड्रोन खुद हो जाएगा। जो एक्चुएटिंग सिग्नल है या फिर हमारा इनपुट है वो क्या हो जाएगा, प्रोपेलर की स्पीड, कि किस स्पीड से पंखा चल रहा है, ठीक है। और हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, ड्रोन की करंट लोकेशन। बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम रहेगी, ठीक है। तो हमारा टारगेट अभी भी वही है कि हमें 50 मीटर ऊपर पहुंचना है ज़मीन की हाइट से। हमारा एक्चुएटिंग सिग्नल क्या हो गया, प्रोपेलर स्पीड। हमारा क्या हो गया, आउटपुट एल्टीट्यूड या फिर ड्रोन की करंट लोकेशन, ठीक है। हमारा एरर अभी अगर हम मान लेते हैं कि हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ज़मीन पे अभी है, तो एल्टीट्यूड कितना 0, तो ये 0 आया, हमें 50 तक पहुंचना है, तो एरर कितना हो जाएगा 50 माइनस 0 50, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट वाला टर्म, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारा एरर 50 है, तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो हमारे प्रोपेलर की स्पीड क्या हो जाएगी, एरर है हमारा 50 है और हमारा गेन कितना है 0.1, तो 5 मीटर की स्पीड से जाएगा, ठीक है। गया गया गया, पहले 5 मीटर से गया, क्या हुआ, यहाँ पे गया, इसने 5 मीटर प्रोपेलर ने दिया, ये फिर 5 मीटर ऊपर चला गया। अब जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो इसका एरर हो जाएगा 45, 50 माइनस 5, क्योंकि 5 इसने कवर कर लिया, तब प्रोपेलर की स्पीड हो जाएगी कितनी 4.5, फिर इसने और कवर कर लिया। इवेंचुअली धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विद टाइम के साथ एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहाँ पे ये 50 मीटर कवर कर लिया है,
ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हमारा एरर हो गया 0। तो प्रोपेलर बोलेगा कि अच्छा अब तो हम पहुंच गए हैं, अब रिलैक्स करते हैं, ये अपना पंखा बंद कर लेगा। तो अब हमारा पंखा बंद हो गया, तो हमारा प्रोपेलर क्या हो, हमारा जो ड्रोन है, सॉरी ड्रोन क्या हो जाएगा, हमारा नीचे गिर जाएगा। तो ड्रोन बोलेगा, ड्रोन हमारा फॉल बैक टू लैंड लेवल, ठीक है। तो हमारा गिर गया। तो हमें तो ये नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था कि हमारा जो ड्रोन है वो हावर करे। तो होता क्या है कि हावर तब करता है हमारा ड्रोन जब प्रोपेलर की स्पीड बराबर हो जाए ड्रोन के वेट की। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तब हमारा ड्रोन क्या करेगा, हावर करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि हमें 100 आरपीएम चाहिए हावर करने के लिए। कितना चाहिए, 100 आरपीएम। तो इनिशियली हमने क्या किया, ये हमारा गेन टर्म है जो क्या कर रहा है, प्रेजेंट सिनेरियो को कैलकुलेट करके हमें बता रहा है, ठीक है। तो एरर लिया, एरर हमने 50 ले लिया और गेन हमारा 2 है, तो क्या हो गया 100 आरपीएम। तो इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, हमारा जो ड्रोन है वो हावर तो कर रहा है लेकिन कहाँ, बेस लेवल पे, यानी कि जमीन पे ही हावर कर रहा है। तो चलो थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। तो हमने क्या किया कि गेन की वैल्यू को बढ़ा दिया, गेन की वैल्यू को बढ़ा के क्या कर दिया, मान लो 4 कर दिया, यहाँ पे 5 कर देते हैं, ठीक है, 5 कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, 5 किया तो हमारा मान लेते हैं कि एरर हमारा 20 है, तो हमारा स्पीड कितना हो जाएगा, 100 आरपीएम प्रोपेलर की। तो एरर यानी कि ये वाला टर्म, यानी कि जमीन से 30 मीटर की ऊपर पे हमारा ड्रोन हावर करेगा, हाँ कि ना, ठीक है। हम लोग इंक्रीज करते हैं, मान लो हमने क्या किया, गेन की वैल्यू को 100 कर दिया, गेन की वैल्यू को क्या कर दिया, 100 कर दिया। तो अब एरर हमारा क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। अब इस 1 मीटर पे हमारा ड्रोन क्या करेगा, हावर करेगा, लेकिन हमारा एरर 0 हुआ नहीं, हमारा एरर 0 नहीं, तो हमारा एरर तो 0 नहीं हुआ। तो एक क्या रह गया हमारे पास, हमेशा एक एरर रह गया, चाहे हम लोग कुछ भी कर ले। तो क्या हो रहा है कि एक पोजीशन के बाद हमारा एरर कम नहीं हो रहा है, तो वैसी पोजीशन जहाँ पे हमारा एरर कम ना हो, तो एक स्टेट आ जाता है, ऐसे स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी स्टेट एरर। तो हम लोग सोचेंगे कि अब इसको रिमूव कैसे करें। इसको रिमूव करने के लिए सिंपल सा है, एक ऐसी चीज़ लगा देंगे जिसको हम लोग इंटीग्रल बोलते हैं, जो क्या करेगा, हमारे पास्ट डेटा को भी अपने ब्रेन में रखेगा। तो हमने एक इंटीग्रल ऐड कर दिया जो क्या कर रहा है, हमारे पास्ट डेटा को ऐड कर रहा है। तो अब होगा क्या कि एक स्टडी स्टेट आ गया, अब हमारी वैल्यू कम नहीं हो रही है, लेकिन हमारा ये क्या कर रहा है, जो इंटीग्रल वाला पार्ट है वो ऐड कर रहा है। पहले इतना ऐड किया, फिर और ऐड किया, फिर और ऐड किया, तो हमारा वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी इवेंचुअली। तो जो हमारा ड्रोन था वो यहाँ अटक गया था, उसके पास और जाएगी तो ये और थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर ये यहाँ पे आ गया, फिर से स्टडी स्टेट में आ गया, कहने के लिए अगर इंटीग्रल ना होता तो। और फिर क्या होगा, फिर से ये वैल्यू देगा, तो फिर से ये पार्ट इंक्रीज होगा, तो इवेंचुअली ये क्या आ जाएगा, अपने पॉइंट पे आ ही जाएगा। तो क्या होगा, स्टडी स्टेट होने के कारण इवेंचुअली ये वैल्यूज ऐड करते जाएगा और करते करते हमारा पहुंच जाएगा। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या हो गया, 50 मीटर तक पहुंच गया। तो प्रोपोर्शनल वाला टर्म क्या बोलेगा, हमारा जो गेन था पी वाला टर्म, वो क्या बोलेगा कि एरर एरर तो 0 हो गया, चलो मेरा काम खत्म, मैं जा रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, बट इंटीग्रल वाला था उसने सारी चीज़ें कैलकुलेट करके रखी थी, सब ऐड करते गया वो। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 100 आरपीएम, और हमें हावर करने के लिए चाहिए कितना था, 100 आरपीएम। तो हमारा काम बन गया, हम लोग 100 आरपीएम पे हावर कर रहे हैं, ग्रेट हो गया। अब तुम लोग फिर से बोल रहे होगे कि चलिए भैया ठीक है, प्रोपोर्शन भी ले लिया, इंटीग्रल भी ले लिया, हमारा कंट्रोलर तो बन गया, अब हमें ज़रूरत क्या है नेक्स्ट टर्म की। तो अब हमारे पास दिक्कत क्या है कि जो हमने पाथ लिया वो आइडियल नहीं है। मे बी हम चाह रहे हैं कि ऐसे चले जाए, 50 मीटर पर ऐसे पहुंचे, लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअली में, ये ऊपर जाके आ रहा है।
ये वाला जो एरिया है वो ज़्यादा कवर कर रहा है, हम चाह रहे हैं कि ये ना हो, क्या हो, ये ना हो, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरशूट। तो ये ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीज़ें करेंगे। तो अब क्या हो गया कि हमारा बहुत पास आ गया ये ड्रोन, तो अब क्या होगा कि चीज़ें कम होना स्टार्ट होगी, जो प्रोपेलर की स्पीड होगी वो कम होना स्टार्ट होगी। लेकिन क्या होगा, बाई चांस ये ग्रेटर देन 100 हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल एरर है। ये तो जीरो हो ही गया, बट इन केस तो हो ही सकता है ना कि चाहिए था बट हल्का सा ज़्यादा हो गया, फिर उसको नेगलीफाई करके फिर भी आ जाएगा अपने पोजीशन पे। तो ये क्या होता है, ये एक्स्ट्रा कवर कर लेता है, ये वाला ये ओवरशूट हो जाता है। तो इस ओवरशूट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डेरिवेटिव टर्म रख देते हैं। इसका काम क्या है कि ये क्या करता है, फ्यूचर की चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए चेंजेस करता है। इसका काम होता है रेट ऑफ चेंज को मेजर करना, जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर है उसको मेजर करना इसका काम होता है। ठीक है, तो अब क्या करेगा, मान लो हम लोग तेजी से ऊपर जा रहे थे, अब हमारा चेंज कम होना स्टार्ट हुआ, तो डेरिवेटिव टर्म क्या बोलेगा कि अच्छा हमारा एरर कम हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा कि अब स्लो करना स्टार्ट कर दो। जो चेंज ऑफ हो रहा था, हमारा जो चेंज ऑफ एरर था उसको और स्लो कर दो, तो हमारी डेरिवेटिव की टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब क्या हो गया, ये सिनेरियो हो गया कि हल्का सा ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। तो अब ये क्या बोला है कि अरे हमारा एरर तो पॉजिटिव हो गया, तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, बढ़ रहा है हमारा एरर। अब तो अब क्या करो, हमारे आई की वैल्यू को इंक्रीज करो, जो डेरिवेटिव टर्म आ गई पॉजिटिव हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इंटीग्रल टर्म ऐड कर दिया, जो क्या करता है, पास्ट की चीज़ों को दिमाग में रखता है, और पी टर्म क्या है, जो प्रेजेंट के एरर को कैलकुलेट करता है, और एक डेरिवेटिव टर्म हो गया जो फ्यूचर की चीज़ों को ध्यान रखता हुआ है। इनके साथ एक आता है के आई, जो इंटीग्रल का कांस्टेंट होता है, के पी और के डी, ये क्या होते हैं, वेटिंग फैक्टर होते हैं। इसको हमें ट्यून करने की ज़रूरत होती है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है पी आई और डी की वैल्यू को ट्यून करने की कोशिश। तो हमने एक एग्जांपल देख लिया कि अब हमें पता भी चल गया कि हाँ हमें पी आई और डी की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो अब जब हमें पता चल गया है कि इनकी ज़रूरत क्यों है, तो अब हमें पता भी तो होना चाहिए कि इसको निकालते कैसे हैं। तो हमने तो ये इंट्यूटिव मेथड लगा लिया कि हाँ चलिए हमें पता चल गया कि हमें कैसे कैसे पी आई और डी निकालना है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो इसका जो हमें मैथमेटिकल फॉर्म है, जो फॉर्मूला वाला है, वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, हमारा प्रोपोर्शनल टर्म। तो ये क्या होता है, एरर इनटू केपी की वैल्यू। जो हमारा इंटीग्रल टर्म होता है क्या होता है, इंटीग्रल टर्म इनटू एरर का इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, और जो डेरिवेटिव टर्म क्या है, डेरिवेटिव टर्म इनटू ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हम लोग रियल लाइफ में इसको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो जब बात आती है ना कि पीआईडी को ट्यून करने की, तो इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो स्टेप 1 में क्या करते हैं हम लोग, पी पी यानी कि के पी टर्म। ठीक है, हम लोग सेट करते हैं के पी की टर्म को, न कि पी की टर्म को। फिर हमारे पास आता है इंटीग्रल, इसका कांस्टेंट क्या आता है, के आई, और डेरिवेटिव टर्म का क्या होता है, के डी। तो एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, के पी के आई और के डी की वैल्यू को सेट कर रहे हैं। और एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि सबसे डिफिकल्ट टास्क यही होता है, इनको ट्यून करने की कोशिश करना। हम लोग कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा हिट एंड ट्रायल के बाद हमें पता चलता है कि अच्छा ये हमारी टर्म है, और हमें ये एक टाइम तो ऐसा आएगा जब तुम्हें लगेगा कि 11 भी ठीक है और 10.9 भी ठीक है। तो अब डिफरेंशिएट कैसे करना है, तो वो तुम्हारे इंट्यूजन पे है कि तुम कौन सी वैल्यू को बेटर मान रहे हो और कौन सा तुम्हारे सिस्टम के लिए बेटर है। तो हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, पहले क्या करते हैं, के पी की वैल्यू को इंक्रीज, बाकी सब के आई और के डी सबको 0 करते हैं, और इसकी वैल्यू को 0.1 ले लिया। अब देखा अच्छा ठीक है, इसमें कुछ कुछ और एरर है, ये बहुत स्लो काम कर रहा है, और बढ़ाया। तो ये
एक पॉइंट आ गया कि चलो हाँ ये 12 पे आ गए हम लोग, हाँ अब ठीक काम कर रहा है, ना हमारा सिस्टम ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है ना ज़्यादा स्लो काम कर रहा है। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आ गया, ये ऑब्जर्वेशन करना है हमें। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये हमारा निकल गया कि हाँ ठीक है, अब एरर तो ठीक है, लेकिन अब दिक्कत क्या आ रही है कि ये कुछ कुछ गलतियां कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, आई की टर्म को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज किया इंक्रीज किया इंक्रीज किया इंक्रीज किया, तो अब क्या हो जाएगा कि हाँ इंक्रीज किया, तो अब क्या होगा कि कुछ ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है या फिर कुछ ज़्यादा स्लो काम कर रहा है, फिर सिनेरियो आएगा। फिर क्या आएगा कि हाँ एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा इस दोनों का, केपी और के आई के लिए एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा हमें। तो अब हमें लगा कि हाँ हमारा बैलेंस हो गया, तो हमें केपी और के आई की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, और केडी क्या करेगा, जो स्टेबल है ना, जो थोड़ा बहुत अनस्टेबल बच गया है, उसको स्टेबल करने में हमारा केडी मदद करेगा। सेम चीज़ है, इसकी वैल्यू को स्टार्ट करेंगे और फिर इंक्रीज करेंगे। जब केपी की वैल्यू को इंक्रीज करना स्टार्ट करोगे तो याद रखना, अगर 0.1 कर रहे हो तो 1 तक 0.2 का डिफरेंस लेना, एंड देन इंक्रीज करते करते 5 तक 0.5 का लेना, एंड आफ्टर 10 एक एक का ले सकते हो। बट अगेन अगर तुम्हें लगे कि क्या करना है कि हाँ मेरा जो डिफरेंस आ रहा है वो 12 और 13 के बीच में आ रहा है, तो ठीक है तुम उस हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, बता दिया ऑलरेडी कि ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो उससे नहीं आता है। तो अभी हमारा ठीक है हो गया, थियरी वाला पार्ट हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको इसकी मदद से हम लोग पी आई डी की वैल्यू निकालते हैं। तो जो हमारा पी आई डी जो आउटपुट जाता है, यानी कि जो एक्चुएटिंग सिग्नल जाता है, वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टर्म प्लस इंटीग्रल टर्म प्लस डेरिवेटिव टर्म। और पी की वैल्यू क्या आती है, वो फॉर्मूला जो हमने लिखा था ऑलरेडी, वो से ये के पी के आई और के डी की इंटू कुछ 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 कुछ। ठीक है, यहाँ से हमने पी आई डी की वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग सेल्फ बैलेंसिंग बॉट देखते हैं जो हमने बनाया था खुद, उसकी ट्यूनिंग करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि ये एक मैटलैब का एक सॉफ्टवेयर है सिमुलिंक, इस पे हमने अपने बॉट का मॉडल बनाया था। ठीक है, तो उसको हम लोग आज अभी रन करने वाले हैं। तो ये मॉडल बनाना कभी और सीखेंगे, अभी जस्ट देख लेते हैं। तो इसमें हमें दिख रहा है हमारे काम की चीज़, ये पी आई डी। तो इस पर डबल टैप किया तो ये खुल गया पैनल। देखो यहाँ पे पी आई और डी की वैल्यू दी हुई है। ये पी एक्चुअली में क्या है, हमारा के पी की वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को 0.3 करके देखते हैं, बाकी सारी वैल्यू 0 0 है। ओके किया, ये रन किया, रन किया, अब कंपाइल हो रहा है और ये आ गया हमारा बॉट, हमारा बॉट ये रहा। तो देखो ये हमारा बॉट क्या हो रहा है, ये जा रहा है 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 जा रहा है, ये आगे चला जा रहा है। ठीक है, तो हमें अभी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज किया, कितना किया, हम लोग इसकी वैल्यू को 1 करके देखते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अब क्या हो रहा है। अब थोड़ा सा स्लो हो गया, क्या हो गया, ये थोड़ा सा स्लो हो गया, तो मतलब हाँ हम लोग पास पहुंचने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही करते करते हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और एक पॉइंट आ जाएगा, जैसे कि मुझे तो आंसर पता है क्योंकि हम लेकिन ऑलरेडी करके बैठा है। ठीक है, तो अभी मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो पी की वैल्यू हमें मिल गया ऐसे ही करते करते। ठीक है, तो अब देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हाँ देखिए स्टेबल हो रहा है, ये जा रहा है और धीरे धीरे जाके रुक जा रहा है। तो मतलब हाँ हमें पी की वैल्यू तो हमारी मिल गई है। अब क्या करेंगे हम लोग, पी मिल गया है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, अब आई की वैल्यू को देखेंगे। तो आई को स्टार्ट करेंगे 0.3 के साथ, 0.3 डाला, कुछ नहीं, उसका फिर से रन करेंगे। तो क्या हो रहा है,
हमारा अम, ये थोड़ा सा बैक गया और स्टिल ये आगे जा रहा है, 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 मतलब हम लोग पास में ही है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे अब, इसकी वैल्यू को थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे। तो ऐसे इंक्रीज करते 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 करके 1 तक चलेगा, इंक्रीज करते करते। रन किया, देख रहे हो कितना स्टेबल हो गया है। ये पीछे हल्का सा गया एंड जस्ट ऑलमोस्ट रुक जा रहा है। तो मतलब हम लोग बहुत पास है अभी, बस थोड़ी सी और ट्यूनिंग करनी है और हमारा काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को 1.61 कर दिया। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि हमारा काफ़ी स्टेबल हो गया है। क्या हो गया, काफ़ी स्टेबल हो गया है। अब जस्ट थोड़ी सी और ट्यूनिंग हो जाएगी और ये ऑलमोस्ट रुका ही हुआ है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट रुका ही हुआ है, जस्ट हल्का सा और हो गया, हमारा काम हो गया, मतलब हमारा काम ऑलमोस्ट हो गया, जस्ट थोड़ा सा बचा हुआ है। तो हम लोग आई की वैल्यू को ट्विन कर दिया है। अब बस हमें स्टेबल, थोड़ा सा और स्टेबल करना है। उसके लिए क्या करेंगे, डेरिवेटिव टर्म लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 0.36 ले रहा हूँ। ठीक है, अब चला के देखते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि हाँ, हमारा स्टेबल ऑलमोस्ट हो गया। अब देखो ये रुक जा रहा है। हमारा इस बोर्ड का काम क्या था, सेल्फ बैलेंस करना खुद को, और ये क्या कर रहा है, खुद को सेल्फ बैलेंस कर दे रहा है और ये इक्विलिब्रियम में पहुंच गया है। तो ऐसे हम लोग करते हैं सेल्फ बैलेंस। और ये हमारा रोबोट है जिसको हमने सेल्फ बैलेंस किया है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये हमने सेल्फ बैलेंसिंग बोर्ड को सेम तरीके से ट्यून किया था। हमने अभी तक देखा पीआईडी क्या है, पी टर्म क्या है, आई टर्म क्या है, डी टर्म देखा, फिर इनका सिग्निफिकेंस देखा कि ये प्रेजेंट बताता है, ये पास्ट बताता है और ये फ्यूचर को बताता है। फिर हमने इनसे जुड़े कुछ एग्जाम्पल देखे, एक ड्रोन का एग्जाम्पल देखा, उसमें समझ में आया चीज़ें कि अच्छा कैसे चीज़ें वो काम कर रही है। फिर हमने एक बॉट जो हमारा था उसको ट्यून करके देखा कि कैसे पी आई और डी ट्यून किया जाता है, प्रोसेस समझ में आ गया। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। थैंक यू एवरीवन।